سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ اس بلیٹن میں میرا ساتھ دیں گی مدیحہ سلیم جو کہ اپنے گھر پر موجود ہیں اور وہیں سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں اور کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس نے تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ریمارکس میں کہا کہ کہیں شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں میں تعاون نہ ہونے کی وجہ مرکز میں بیٹھے لوگوں کا رویہ متکبرانہ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے حفاظتی سامان کی خریداری، راشن کی تقسیم میں شفافیت پر سوال اٹھا دیا۔ کرونا وائرس کے پیش نظر وفاق اور صوبوں کی مختلف پالیسیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کہیں شفافیت نظر نہیں آ رہی اور سارے کام لگتا ہے کاغذوں میں ہی ہو رہے ہیں۔ دوران سماعت سیکرٹری صحت نے قرنطینہ سینٹرز میں سہولیات بارے بریف کیا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور قرنطینہ سے پیسے لیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ جو اسپتال جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسپتال سے لاش وصول کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ سماعت کے دوران خیبر پختونخوا میں ڈاکٹروں پر تشدد کا بھی تذکرہ ہوا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ کا ایک صوبائی وزیر کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ کرا دیں گے، یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے، پتہ نہیں دماغ پر کیا چیز چڑھ گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صوبوں کو ایسے کاروبار روکنے کا کوئی اختیار نہیں جو مرکز کو ٹیکس دیتے ہیں، کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑیں گے، لیکن جس قیمت پر عوام کو سہولیات مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سن لیں، انہوں نے 20 سال پہلے آج کے حالات بتا دیے تھے۔ ہمارے ملک کا ایک حصہ پہلے ہی ہم سے چلا گیا اور کچھ حصوں میں اب بھی آگ لگی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ کھا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ ابھی کسی کرپٹ بندے کو عدالت بلائیں، دیکھیے گا کیسے جھوٹ بولے گا۔ نیب، FIA، اینٹی کرپشن پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کتنا حفاظتی سامان خریدا گیا، کیسے تقسیم ہوا، NDMA عدالت کو آگاہ کرے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ملک میں مکمل طور پر استحصال ہو رہا ہے، لگتا ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کے خلاف سازش کر رہی ہیں، کوئی یکساں حکمت عملی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومتیں پیسے مانگ رہی ہیں، اگر وفاق کے پاس فنڈز ہیں تو اسے دینے چاہیے۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں میں تعاون نہ ہونے کی وجہ مرکز میں بیٹھے لوگوں کا متکبرانہ رویہ ہے۔ کیا وفاق میں بیٹھے لوگوں کو ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں، کورونا سے متعلق یکساں پالیسی بنائی جائے۔ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں عدالت نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالت نے حکومت کو کرونا سے متعلق یکساں پالیسی بنانے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کتنا سامان خریدا گیا، کیسے تقسیم ہوا، عدالت نے NDMA سے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اسی بارے میں امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کرونا سے متعلق یکساں پالیسی بنائے۔ پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے بنائی جائے۔ حاجی کیمپ میں عدم سہولیات پر قرنطینہ مرکز کیوں قائم کیا گیا؟ عدالت نے NDMA سے جواب طلب کر لیا۔ زکوٰۃ اور بیت المال فنڈز میں کرپشن پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت پر فیصلہ کریں گے کرپشن کیس نیب کو دینا ہے یا FIA کو۔ عدالت نے حکم دیا کہ سربراہ NDMA بتائیں حاجی کیمپ مرکز پر کتنے پیسے خرچ ہوئے۔ پشاور میں تمام کلینک SOPs کے مطابق کھولنے کا حکم دے دیا گیا۔ عدالت نے وفاقی معاملات پر صوبائی حکومتوں کی مداخلت پر وفاق اور صوبوں سے دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا حکومت سندھ کاروبار کو کھولنے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سندھ حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ کاروبار کھولنے کا اطلاق تمام صنعتوں پر ہو۔ عدالت نے کہا ایسی سرگرمیاں جن سے وفاق کو ریونیو آتا ہے صوبائی حکومتیں انہیں بند نہیں کر سکتی۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے تاجر برادری کے تمام مطالبات کی حمایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں تاجر اپنے SOPs بنا کر فوری اپنے کاروبار کو بحال کر لیں۔ لاک ڈاؤن کا کھیل بہت ہو گیا، اب کراچی کو کھلنا چاہیے۔ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کے زیر صدارت بہادر آباد میں اہم اجلاس ہوا، جس میں تاجروں نے سابق وفاقی وزیر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے تاجروں کے تمام مطالبات کی حمایت کر دی۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اپنے SOP بنا کر فوری اپنے کاروبار کو بحال کر لے۔ لاک ڈاؤن کا کھیل بہت ہو گیا، اب کراچی کو کھلنا چاہیے۔ اب اس شہر کو کھلنا ہے اور ہم اور آپ مل کے کھولیں گے، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی سے پاکستان میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ قربانی دی ہے۔
पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे रगों में खून मिल के दौड़ती है, तो इसलिए हम और आप को दोनों काम करने हैं, इस मुल्क को भी चलाना है, बीमारी को नहीं फैलने देना है। ये जिम्मेदारी आप कबूल करें तो फिर हम आपका मुकदमा लेके जाएं। मुत्तहदा के कन्वीनर ने कहा कि मुल्की मईशत को जिंदा रखने के लिए कराची में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों का बहाल होना बेहद ज़रूरी है। कराची वो लोग चला रहे हैं जिनका इस शहर से कोई वास्ता ही नहीं। कराची का मसला ये है कि खुदा के लिए अब कराची जैसे शहर को इस्लामाबाद से बैठ के ना चलाया जाए। कराची का अलमिया यह है कि वज़ीर आला हाउस से शहर को चलाया जाता है, जहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स भी इस शहर से ताल्लुक़ नहीं रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती इत्तेहादी जमात के सरबराह ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से टेलीफोनिक रब्ता किया है। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि तरमीम में अच्छी बातें भी हैं जिनकी वो मुकम्मल हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। शफकत महमूद ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तजावीज़ पर मुस्बत जवाब दिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से टेलीफोनिक रब्ता किया है और 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि तरमीम में अच्छी बातें भी हैं जिनकी वो मुकम्मल हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। मुतासरा इलाके सेक्टर I-10 1 और 4 ज़्यादा मुतासर होने के बाद सील हैं। I-10 में 45, मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सदाम मांगट की रिपोर्ट देखिए। शहर इक़्तिदार में कोरोना ने कदम जमाने शुरू कर दिए। 400 से ज़ायद केसेस आने के बाद कई इलाकों को सील कर दिया गया। सबसे ज्यादा सेक्टर I-10 1 और 4 मुतासर हुए हैं। सेक्टर I-10 में अब तक मजमूई तौर पर 45 केसेस सामने आ चुके हैं। मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में 32 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बारकों में 31 जबकि लोई बीर में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक इस्लामाबाद में 44 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 4 कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले गए। इंतजामिया की जानिब से I-10, G9, G10, G8, G9, F6, F7, F8 समेत दीगर मुतासर इलाकों को सील करके वहाँ स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन आकिब जवेद के साथ सदाम मांगर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और बदलते मौसम की बात करें तो कराची में हीट वेव की पेशगोई दुरुस्त साबित होने लगी है। सूरज ने धूप के नाम पर आग बरसाना शुरू कर दी। महकमे मौसमियात ने कल से जुमे तक गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। इसी बारे में मानिया शकील रिपोर्ट करेंगी। शदीद धूप, पारा 40 और समंदरी हवाएं बंद कराची वालों की तो जान पर बनाई। हीट वेव के खतरात मंडा रहे हैं और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शहरी आने वाले 1-2 रोज में ऐसे ही गर्मी का सामना करेंगे। गर्म और खुश्क मौसम होगा, यानी नमी ज्यादा नहीं होगी। सुबह के वक्त में विंड जो ये साउथ वेस्टर्ली विंड आज चल रही है, ये कल से कुछ किसी हद तक सस्पेंड होना शुरू हो जाएगी और फिर शाम में ये अलबत्ता चला करेगी। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को अभी से निढाल कर दिया। हवा में नमी के तनासब में इजाफा होने से शहरी गर्मी से बेहाल रहे। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 8 मई तक हीट वेव की वजह से समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी, जबकि बलूचिस्तान और सिंध की सहराई हवाएं शहर में दाखिल होंगी। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहते हैं दुनिया में कहीं भी अवाम की जानों पर मईशत को तरजीह नहीं दी गई, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से ये पैगाम दिया कि अवाम की जानों और तिब्बी अमले को रिलीफ देने से ज़्यादा अहम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय का फुकदान है, जिसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान को चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में खुद इस्तीफ़ा देकर कुर्सी पर किसी और को बिठाएं। उनका कहना था कि जो एक गलत पैगाम है, सूबे अपने वसाइल के मुताबिक कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। पहले 2 हफ्ते का लॉकडाउन कामयाब रहा और उसके नताइज मिले। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम कम वसाइल के बावजूद काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। सिंध में फेज़ 2 शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए सबके ताउन की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं दुनिया में कहीं भी अवाम की जानों पर मईशत को तरजीह नहीं दी गई, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से ये पैगाम दिया कि अवाम की जानों और तिब्बी अमले को रिलीफ देने से ज़्यादा अहम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय का फुकदान है, जिसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान को चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में इस्तीफ़ा दे दें और कुर्सी पर किसी और को बिठाएं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान ने पाकिस्तान में क्रिकेट के करता धरताओं को आईना दिखा दिया। अताउर रहमान ने वसीम अकरम को मैच फिक्सर और आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ को उनका साथी करार दिया।
He doesn't have to because he's bowled a very, very clever slow ball. वसीम अकरम, आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ पाकिस्तान में दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम, लेकिन माजी पर लगे कई बड़े दाग। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान ने भी आईना दिखा दिया। अताउर रहमान का कहना है कि उन्होंने जस्टिस कय्यूम कमीशन में बयान वसीम अकरम के कहने पर बदला। उनके करियर की बर्बादी के जिम्मेदार भी वसीम अकरम ही हैं। मैंने जो बयान बदला था वो वसीम अकरम के कहने पे बदला था, लेकिन मैं उस वक्त तक चुप नहीं करूँगा जब तक ये दुनिया को नहीं बताएगा कि मैंने इसे कहा था, क्योंकि मेरा कैरियर इसकी वजह से तबाह हुआ है। अताउर रहमान ने आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ के भयानक किरदार से भी पर्दा उठाया। उनका कहना था कि राशिद लतीफ़ और आमिर सुहेल ने उनसे हल्फनामा बनवाया और मीडिया में जारी कर दिया। मुझसे जो एफिडेविट लिखवाया गया था उसमें आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ थे, जिन्होंने मुझसे ये एफिडेविट लिखाया था। उन्होंने कहा कि हम भी साथ साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर वही एफिडेविट मेरा अखबारों में दे दिया और हेरल्ड में दे दिया। अताउर रहमान ने उन साबिक खिलाड़ियों की हुब्बुल वतनी पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। अताउर रहमान का कहना है कि पीएसएल को जुआ लीग कहने वाले ये लोग खुद पीएसएल से मुंसलिक हो गए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि अताउर रहमान बयान न बदलते तो वसीम अकरम को सख्त सज़ा हो सकती थी। और शोएब अख्तर ने साबिक कप्तान इमरान खान को ड्रीम पार्टनर चुन लिया। कहते हैं इमरान खान के साथ बॉलिंग कराना ख्वाब था। नए टैलेंट में शोएब अख्तर का इंतखाब नसीम शाह है। बात ये हो रही थी कि किस पेयर के साथ मैं अपना पेयर बनाना चाहूंगा, कि नए और पुराने दोनों में से कौन सा होगा, और अगर मैं पुराना फास्ट बॉलर पिक करूं, मैं किसके साथ बॉलिंग करना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बड़ा खुशकिस्मत होता अगर मेरे साथ होते इमरान खान होते और एक वो अपनी पीक पे होते और मैं भी अपनी पीक पे होता, और अगर वो एक तरफ से बॉलिंग कर रहे होते और एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा होता, दोनों की माइंडसेट एक होता कि हमने विकेटें नहीं छोड़नी, ये होता हमारा एटीट्यूड। अगर दूसरा कोई नया बॉलर अगर जो मेरे एटीट्यूड का बन सकता है और उसमें इतना ही गुस्सा हो सकता है और डरा सकता है, वो हो सकता है नसीम शाह और शोएब अख्तर। तो मेरा पुराना होगा इमरान खान और मैं, और नए में से नसीम शाह और शोएब अख्तर होंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कोरोना के बायस ईद पर नए नोट नहीं मिलेंगे। स्टेट बैंक ने ईद पर नए नोटों के इजरा से इनकार कर दिया। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नोटों के इजरा पर पाबंदी स्टेट बैंक की कोविड-19 कमेटी के सरबराह डीजे बैंकिंग की जानिब से लगाई गई है। ईद पर नए नोटों की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई है। कोरोना के बाद स्टेट बैंक ने नए नोटों के इजरा से इनकार कर दिया है और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नोटों के इजरा पर पाबंदी स्टेट बैंक की कोविड-19 कमेटी के सरबराह डीजे बैंकिंग की जानिब से लगाई गई है। शेखुपुरा में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिदरा यूनुस की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने जफरा और 4 चक रसाला में कार्रवाई की, जिसके दौरान गंदम की 65,000 बोरियां बरामद करके कब्जे में ले ली गईं। डिप्टी कमिश्नर सिदरा यूनुस का कहना है कि मुल्क और माशरे के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेखुपुरा में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिदरा यूनुस की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने झबरा और 4 चक रसाला में कार्रवाई की, जिसके दौरान गंदम की 65,000 बोरियां बरामद करके कब्जे में ले ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सिदरा यूनुस का कहना है कि मुल्क और माशरे के मुजरिम किसी रियायत के भी मुस्तहिक नहीं हैं। कोरोना वायरस की वबा से शदीद मुतासरा मुल्क इटली में लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। अतालवी हुकूमत ने 8 हफ्तों बाद लॉकडाउन में नरमी करते हुए ऐलान किया है कि काम की गर्ज से लोग अपने घर से बाहर जा सकते हैं। अतालवी हुकूमत ने डॉक्टर्स या शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी है, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए भी घर से निकलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स और पिज़्ज़ा शॉप्स को डिलीवरी के लिए खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तहम इकट्ठे होकर खाना खाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इटली में लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। अतालवी हुकूमत ने 8 हफ्तों बाद लॉकडाउन में नरमी करते हुए ऐलान किया है कि काम की गर्ज से लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स और पिज़्ज़ा शॉप्स को डिलीवरी की इजाज़त होगी, ताहम इकट्ठे होकर खाना खाने पर पाबंदी आयद होगी। इटली में 8 हफ्तों के बाद ये लॉकडाउन में नरमी की गई है और लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी गई है।
ایران میں کرونا کے کیسز میں کمی کے بعد ملک کے بعض حصوں میں مساجد کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی حکومتیں کرونا سے کلیئر ہونے والے علاقوں میں مستقل طور پر مساجد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملک بھر میں عائد پابندیوں میں بھی کمی کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ 132 علاقوں یعنی ملک کے 1/3 انتظامیہ ڈویژنز میں مساجد کھول دی جائیں گی۔ انہوں نے زور دیا کہ اسلام تحفظ کو لازم تصور کرتا ہے اور اجتماعی نماز کی نسبت سماجی فاصلہ بہت ضروری ہے، جبکہ مساجد میں نماز کی ادائیگی صرف سفارش ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 47 افراد کرونا سے ہلاک ہوئے، جو گزشتہ 55 روز کے دوران سب سے کم شرح اموات ہے۔